Hello friends, so I'm back with my new lecture. So today we'll study how different constitutional authorities are appointed. As you know that different constitutional offices are there, institutions are there. So in this lecture we'll study how the members of various institutions are appointed. So this will definitely, this is a very important lecture for you because in the chapters, in different chapters, this appointment process has been given for your ease of study and so that you can study it faster and because it will be asked in prelims exam also. So I have compiled it in a centralized place in which how all these authorities are appointed. So Election Commission, UPSC, NCSC, NCST, NCBC, CAG, NHRC, CIC, CBC, CBA, and how these members are the members of these institutions are appointed. So Chief Election Commissioner and EC. So up till March 2023, the Chief Election Commissioner and two other ECs are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. But now Supreme Court has changed the process, and now the process has been become same as the appointment of the CBI director. So there should be there will be now become there will be a committee which consists of the Prime Minister, which consists of the leader of opposition of Lok Sabha or the leader of the single largest party in Lok Sabha and the Chief Justice of India. So this committee will be appointing the Chief Election Commissioner and two different election commissioners, and that has got changed. Previously, it was the directly Prime Minister advice, which President has thrown away, and CC and ECs should be appointed. But now a committee, which is an impartial committee, will be responsible to appoint the CC and two ECs to impart impartiality and objectivity to this great institution of India. CBI director, again the same. I already explained CBI director का process यही है. 3-member committee consists of Prime Minister as chairperson, leader of opposition in the Lok Sabha and Chief Justice of India और judge of the Supreme Court as nominated by him. तो कोई जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं या फिर वो खुद भी मेंबर हो सकते हैं. ठीक है. सो वेयर देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा देन द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा वुड बी ए मेंबर ऑफ दैट कमिटी. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में ना हो तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा आप ले सकते हैं. यूपीएससी एंड एसपीएससी. UPSC chairman and members are appointed by President of India on the advice of the Prime Minister. State Public Service Commission chairman and members are appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister. तो ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे डायरेक्टली प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं. NCSC, which is National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and National Commission for Backward Classes. The chairperson members are appointed by the president by warrant under his head and seal. तो उसका क्या मतलब है? प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करेगा बट बाई वारंट अंडर इज हैंड एंड सील. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रेसिडेंट किसी को डेलीगेट नहीं करेगा. अभी तक जो हमने पढ़ा सीबीआई डायरेक्टर का पढ़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पढ़ा और CIC हो गए. तो ये जो भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट UPSC SPSC के मेंबर्स को, तो डेलीगेट हो जाती है अथॉरिटी. तो नीचे सेक्रेटरी का, अंडर सेक्रेटरी का किसी का नाम लिखा होता है, डिप्टी सेक्रेटरी, बट लिखा होता है द प्रेसिडेंट. इट इज़ डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डायरेक्ट किया है बट अपॉइंट कोई और कर रहा है. बट हेयर प्रेसिडेंट का ही नाम होगा, प्रेसिडेंट का ही साइन होगा नीचे. भाई वारंट अंडर इज हैंड एंड सील को सील होगा और प्रेसिडेंट का साइन होगा उसके ऊपर, तभी इनके मेंबर्स अपॉइंट होंगे. क्या अगेन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय वारंट अंडर हिज हेड एंड सील. वही प्रेसिडेंट का ही नाम होगा, उनकी सील होगी. अटॉर्नी जनरल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बट नॉट बाय इज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. NHRC, National Human Rights Commission. So chairman and members are appointed by president on the recommendation of a 6-member committee. इसमें 6-member committee होती है. कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल, ठीक है. दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं. हाँ, दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. नॉट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं. तो 6-member कमेटी मिलके इनके मेंबर्स और चेयरमैन को चुनती है. NHRC वेरी इंपॉर्टेंट. CIC,
अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा होंगे, एंड अ यूनियन मिनिस्टर एज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और प्राइम मिनिस्टर होंगे CIC के लिए। CVC again by president by warrant under his hand and seal on the recommendation of a 3-member committee, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, सेंट्रल होम अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है। लोकपाल, the selection of the chairperson and members of the lokpal shall be through a selection committee consist of prime minister होंगे कमेटी में, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, Chief Justice of India or a sitting Supreme Court judge nominated by the Chief Justice of India, and an eminent jurist to be nominated by the President of India on the basis of recommendations of the first 4 members of the selection committee. तो कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होंगे और ये होंगे लीडर अपोजिशन ऑफ द लोकसभा, स्पीकर हो गए और चीफ जस्टिस हो गए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जो नॉमिनेट किए जाएंगे चीफ जस्टिस के द्वारा, और साथ में एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे, जो ये 4 मिलके कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट और इस कमेटी में अपॉइंट करेंगे। तो 5 मेंबर्स होंगे लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए। CIC का मैंने बता दिया, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है, CIC में, और CVC में होम अफेयर्स मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों में होंगे। NIA is headed by डायरेक्टर जनरल, ही इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करेगी NIA के चीफ को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज मेंबर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अनदर इंडियन पॉलिटी टॉपिक। तो आपको ये समझ लेना चाहिए बाई वारंट अंडर इज हैंड एंड सील कौन कौन है। कैग, NCSC, NCST, NCBC, CVC, कैग हो गए, CVC हो गए, इनके मेंबर्स को बाई वारंट अंडर इज हैंड एंड सील। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट, तो वो भी बाई वारंट अंडर इज हैंड एंड सील। ठीक है। तो उसके अलावा बाकी सब प्रेसिडेंट डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाई वारंट अंडर इज हैंड एंड कैग बता दिया मैंने, CVC बता दिया मैंने, GST, NCST, NCBC एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई लेक्चर। थैंक यू।